میرے بارے میں، میرے لائف سٹائل کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دینا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کوئی پرابلم ہو۔ Family doesn't matter. Sorry. It's okay. جب عمل فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ شادی کرے گی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیا ہوا؟ اچھی نہیں لگ رہی میں؟ سب کچھ مجھے پسند تو نہیں ہے، لیکن ہر سال آپ لوگوں کی خوشی کے لیے ہمیں کاٹنا پڑتا ہے کیک۔ اتنا اہتمام کر لیا۔ یہ لیجیے۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے ابیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے، تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ ابیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر ابیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اوہو، بہت برا لگا مجھے آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہی اور آدھا آپ کے پاس، جس پر ابیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے، ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ ابیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر ابیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ ابیر جواب میں کہتی ہے، میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ ابیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے ابیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے، تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ ابیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر ابیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اوہو، بہت برا لگا مجھے آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا۔ مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہی اور آدھا آپ کے پاس، جس پر ابیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے، ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ ابیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر ابیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ ابیر جواب میں کہتی ہے، میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ ابیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے ابیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے، تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ ابیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر ابیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے۔ اوہو، بہت برا لگا مجھے
آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہیں اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے عبیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ عبیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر عبیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اوہو بہت برا لگا مجھے، آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہیں اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے عبیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ عبیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر عبیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اوہو بہت برا لگا مجھے، آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہیں اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے عبیر سے شادی کر کے، تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ عبیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر عبیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اوہو بہت برا لگا مجھے، آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہیں اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں
कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे
जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी
करके एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है एक सच्चा इंसान, जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है अरे छुपाना भी कैसे। आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है एक सच्चा इंसान, जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है अरे छुपाना भी कैसे। आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है एक सच्चा इंसान, जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है अरे छुपाना भी कैसे। आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ, मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कहीं और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है एक सच्चा इंसान, जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है अरे छुपाना भी कैसे। आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में
कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है, जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है, जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके, तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा, तू अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है, जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो, बहुत बुरा लगा मुझे आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है, क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे
जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे, आपके साथ जो ये सब हुआ। मुझे तो लगा था कि शादी टूटने के बाद आप अपनी अम्मी के साथ वापस जा चुकी होंगी। वैसे आपको क्या मिला हनान से शादी करके? एक ऐसे शख्स से शादी कर ली जो किसी और के इश्क में डूबा हुआ है, आधा कही और आधा आपके पास, जिस पर अबीर कहती है फिर भी आपसे बेहतर इंसान है, एक सच्चा इंसान जिसने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। जिस पर हमजा तंज करता है, अरे छुपाना भी कैसे? आधी यूनिवर्सिटी को इसकी मोहब्बत के किस्से के बारे में पता है, दादों तक को पता है। अबीर को इस शख्स की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इधर अबीर को न जाने क्या मसला है, सोते जागते से हनान को सारा का नाम लेकर टीज करने की आदत हो गई है। वो बेचारा हमजा की बातों पर माजरत करते हैं। अबीर जवाब में कहती है, मैं हमजा को भूल गई हूँ, आप मुझे बताएं कि आप सारा को भूल चुके हैं। नहीं ना, आप सारा को नहीं भूली, इसलिए बेहतर होगा हम इस मौजू पर बात ना करें। हनान बड़े सब्र से बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सारा का जिक्र हमेशा अबीर ही करती है और बार बार करती है इसके सामने, इसके मना करने के बावजूद भी। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि हनान ने कुर्बानी दी है अबीर से शादी करके तो इस बात पर बड़ा हैरान होता है। हनान को डीस करता है, तुमसे तवक्को नहीं थी कि मेरी छोड़ी हुई लड़की से शादी करेगा तू, अपनी असल मोहब्बत को भूल जाएगा। वो हनान पर तंज कर रहा है जबकि अबीर इसकी बात सुन लेती है। हमजा की नज़र अबीर पर पड़ती है तो इसके पास आ जाता है। ओहो बहुत बुरा लगा मुझे,
آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہی اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے عبیر سے شادی کر کے تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ عبیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر عبیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اوہو بہت برا لگا مجھے، آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہی اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل صرف تم کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جب حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ حنان نے قربانی دی ہے عبیر سے شادی کر کے تو اس بات پر بڑا حیران ہوتا ہے۔ حنان کو ڈیس کرتا ہے تم سے توقع نہیں تھی کہ میری چھوڑی ہوئی لڑکی سے شادی کرے گا، تو اپنی اصل محبت کو بھول جائے گا۔ وہ حنان پر طنز کر رہا ہے جبکہ عبیر اس کی بات سن لیتی ہے۔ حمزہ کی نظر عبیر پر پڑتی ہے تو اس کے پاس آ جاتا ہے اوہو بہت برا لگا مجھے، آپ کے ساتھ جو یہ سب ہوا مجھے تو لگا تھا کہ شادی ٹوٹنے کے بعد آپ اپنی امی کے ساتھ واپس جا چکی ہوں گی۔ ویسے آپ کو کیا ملا حنان سے شادی کر کے؟ ایک ایسے شخص سے شادی کر لی جو کسی اور کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا کہی اور آدھا آپ کے پاس، جس پر عبیر کہتی ہے پھر بھی آپ سے بہتر انسان ہے، ایک سچا انسان جس نے مجھ سے کچھ نہیں چھپایا، جس پر حمزہ طنز کرتا ہے ارے چھپانا بھی کیسے؟ آدھی یونیورسٹی کو اس کی محبت کے قصے کے بارے میں پتہ ہے، دادوں تک کو پتہ ہے۔ عبیر کو اس شخص کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ادھر عبیر کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، سوتے جاگتے سے حنان کو سارا کا نام لے کر ٹیز کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ بیچارہ حمزہ کی باتوں پر معذرت کرتے ہیں۔ عبیر جواب میں کہتی ہے میں حمزہ کو بھول گئی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ سارا کو بھول چکے ہیں؟ نہیں نا، آپ سارا کو نہیں بھولی، اس لیے بہتر ہوگا ہم اس موضوع پر بات نہ کریں۔ حنان بڑے صبر سے برداشت کر رہا ہے کیونکہ سارا کا ذکر ہمیشہ عبیر ہی کرتی ہے اور بار بار کرتی ہے اس کے سامنے، اس کے منع کرنے کے باوجود بھی۔